Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Cancer Ascendant and the predictions for the month of October 2023. So for your ascendant, Venus, which is the lord of your 4th house and 11th house, is going to transition through the second house and where it is going to stay for the whole of the month. Now, in the second half of October, from 18th of October to 2nd of November, Venus and Sun are going to exchange their signs. So, on 18th of October, Sun will be in the fourth house in the Libra sign, which is owned by Venus, and Venus simultaneously will be in the sign of Leo. What it means is that people who are involved in agriculture, vehicles, real estate will see a lot of cash flow in the second half of October. Your family and especially your mother could also be a source of income for you during this time frame. And people who are involved in running a family business which is related to real estate or related to lands or vehicles will see a very good month. Your ascendant people are most associated with your mothers because moon itself is the ruler of Cancer sign, denotes mother in astrology. So moon has a double impact on you. Not only it is your ascendant lord, but it impacts your thinking just like all other ascendants. And the placement of moon in your birth chart decides the progress that you will make in this life as an individual. So more you are associated with your mother and respect her, the better it contributes in your overall progress. Now Venus presence in the second house also guarantees a cash flow in this month, and the best time for cash flow in the month of October is from 10th, 11th and 12th of October. Mars is a highly benefic planet for you. It owns one quadrant, which is the 10th house, and one trine, which is the 5th house, and is considered a highly benefic planet for your ascendant. Mars is going to be in the 4th house from 3rd of October to 15th of November. And here Ketu is already present. And from 18th of October, Sun and Mercury will also join here in the 4th house, which will result in four planets being present in your fourth house. Aspect of Rahu and Jupiter is also going to fall on the fourth house. So in total, there is going to be an energy accumulation of six planets in the fourth house, and Mars is the only planet which is going to remain a constant throughout the month of October and also for another 15 days in the month of November. So you need to be very cautious as far as dealing with your kids is concerned, because most of the energy accumulation in the fourth house is from the malefic planets. Mars is malefic, Ketu is malefic, Mercury behaves with the majority, so it also becomes malefic. Sun is also considered a mild malefic, and Rahu's aspect is also malefic. So overall, there is an abundance of malefic energy in the fourth house, and that's why Mars, which represents fifth house, is also going to get impacted because of this energy. So you need to be cautious as far as your relationships with your kids is concerned, because in this month this energy accumulation will cause a misunderstanding with your kids. Anyways, in your fifth house, the sign of Scorpion falls, and you always struggle to understand what your kids are thinking. It is very difficult to figure out their thought process for you. Now, if you happen to be in the arena of education, you have speculation as a profession or any kind of a profession that requires imaginations, then all of you are going to experience a lot of turmoil in your profession. If you are an amateur speculator, then it is always better to stay away from the market during the entire month of October. Otherwise, it is this scenario of six planets with Rahu's aspect as well is going to cause you tremendous losses in the market, and amateur speculators can be taken to cleaners. If you're a student, then last week of October will prove to be fairly good to appear in any kind of a competitive exams, and within the week, the time of 26th and 27th October are the best days to appear and succeed in any kind of a competitive exams. During the first half of October, Sun and Mercury will be transitioning through the third house and will provide you an opportunity to improve your relationship with your siblings. And the best time to do so is on 13th and 14th of October. Jupiter and Rahu continues to combine in your 10th house, and this is the last month till this combination is going to happen. Rahu is then going to move to the ninth house on 30th of October. So
till the time both of these are in the 10th house, they will continue to create opportunities for you to rise in your profession, because Jupiter is also the lord of your service. So 6th house lord in 10th combining with Rahu would mean that people who are in service or jobs will definitely see a jump in their professional space, and the chances or probability of getting promoted in the month of October are very high. Some of you might have also got promoted in last month in September, but this combination is going to ensure that the probability remains intact till the end of October. For people who are planning to change jobs or people who want to move ahead and rise and shine at the workplace, the best time frame for them in the month of October are 1st and 2nd of October, right at the beginning of the month, and then again from 28th to 30th of October. Now, there are also certain dates where you need to remain cautious and you should avoid taking any key decisions during these days. So, the time frame for you where you need to be very careful are 6th and 7th of October, 20th and 21st of October, and 24th and 25th of October. Avoid taking any key decisions or getting into arguments during these 6 days. So this is the summary for your ascendant people for the month of October. If you have liked my video, I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए अक्टूबर 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, आपके लग्न के लिए शुक्र चतुर्थ और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और ये पूरे अक्टूबर के महीने के दौरान द्वितीय भाव से भ्रमण करते रहेंगे, जहां पर सूर्य की सिंह राशि विद्यमान है। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सूर्य आपके चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे शुक्र की तुला राशि में, और शुक्र सूर्य की सिंह राशि में द्वितीय भाव में बैठे रहेंगे। तो चतुर्थेश और द्वितीयेश का आपस में स्थान परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो जितने भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं, या व्हीकल्स से डील करते हैं, यानी व्हीकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन का एजेंसी है, या उनका खुद का स्वयं का रिटेल हाई एंड स्टोर है, या फिर आप जमीन जायदाद से जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों के लिए अक्टूबर के द्वितीय हाफ में काफी कैश फ्लो आएगा अपने प्रोफेशन के थ्रू। इसके अलावा अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके कोई बिजनेस करते हैं, जैसे बहुत से लोगों के फैमिली जनरेटेड बिजनेसेस होते हैं, तो उनको भी इस समय में काफी पैसा आता हुआ दिखेगा अक्टूबर के सेकेंड हाफ में, और आपको आपकी मदर से भी इस समय में पैसा आता हुआ दिख सकता है। किसी भी तरह का जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों के लिए ये बहुत अच्छा समय है पैसे की दृष्टि से। कर्क लग्न के लोगों के लिए जो लग्नेश हैं वो स्वयं ही चंद्र हैं, और चंद्र का संबंध ज्योतिष में माता के साथ आता है, और चंद्र का आपकी कुंडली में आपकी सोच को भी दिखाता है। तो इसीलिए आपके लग्न के लिए चंद्र की जो महत्ता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपके लिए लग्नेश भी है और साथ ही साथ आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करता है बाकी लग्नों की तरह। तो जब किसी भी कर्क लग्न के व्यक्ति की कुंडली में चंद्र बहुत मजबूत स्थिति में होता है, यानी कि लग्न में ही बैठा हो, चतुर्थ भाव में बैठा हो, या फिर वो 11वें भाव में बैठा हो, ऐसे लोगों के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलते हैं, उनको तरक्की करने की राह आसान होती है, क्योंकि अगर इस चंद्र के ऊपर गुरु या शुक्र का भी नैसर्गिक शुभ प्रभाव बन जाए लग्न कुंडली में, तो ऐसे लोग अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और इसीलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप बहुत सारे कर्क लग्न के लोगों को देखें तो उनको अपनी माता से खास करके बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है, या लग्नेश चतुर्थ में हो तो ऐसे लोगों का भी अपने माता के साथ बहुत ज्यादा जुड़ाव आता है। तो ये एक तरह का बूस्ट या बून की तरह काम करता है आपके लिए, वरदान जिसे हम कह सकते हैं, कि आप अगर अपने माता के रोज चरण छुएं, उठकर उनका सम्मान करें हमेशा, तो ऐसे लोगों के लिए भी ग्रह दशा के हिसाब से उनके तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि कर्क लग्न के लोग अपने माता से सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं बजाय बाकी और लग्न के लोगों के मुकाबले में। अभी शुक्र जो द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो शुक्र तो धनदायक ग्रह है ही, तो यहाँ पर आपके लिए जो सबसे अच्छा समय है कैश फ्लो की दृष्टि से वो 10 से 12 अक्टूबर का समय है। और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप चतुर्थ भाव से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का समय और भी ज्यादा अच्छा है पैसे की दृष्टि से। 10 से 12 अक्टूबर तक का समय सारे ही कर्क लग्न वालों के लिए किसी ना किसी फॉर्म में
कैश फ्लो की दृष्टि से अच्छा समय बोला जा सकता है। आपके लग्न के लिए मंगल योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो पंचम भाव यानी त्रिकोण और दशम भाव यानी कि केंद्र स्थान को रूल करते हैं। तो यहाँ पे पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे पूरे महीने में अक्टूबर में, यानी कि 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मंगल यहीं विराजमान रहेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पर केतु पहले से मौजूद हैं, गुरु और राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है, और 18 अक्टूबर के बाद सूर्य और बुध भी यहाँ पर इनको ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आप देखिए कि ज्यादातर जो पापी ग्रह हैं उनकी ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। ज्योतिषीय के अनुसार मंगल पापी ग्रह है, केतु पापी ग्रह है, सूर्य को भी आप पापी ग्रह मान सकते हैं, और बुध उन्हीं की तरह व्यवहार करता है जिसकी वो संगत में होता है। तो यहाँ पर चूंकि 3 पापी ग्रह और राहु की भी दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो 4 पापी ग्रह हैं, और गुरु खाली अकेला एक ग्रह है जिसकी की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर बुध भी आपको पापी ग्रह के समान ही रिजल्ट देने लग जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के 6 ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा ऊर्जाओं का। तो आपके लिए चतुर्थ भाव बहुत ज्यादा मजबूत बन रहा है अक्टूबर के महीने में, और चूंकि मंगल ही यहाँ पर ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा समय तक विद्यमान रहेगा, तो पंचम भाव से जुड़ी हुई चीजों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आप अगर अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमियां होना टालें इस महीने में, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप उनके साथ बहुत ही सावधानी से व्यवहार कीजिए। देखिए आपके लग्न के लिए वैसे भी पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ती है, तो वृश्चिक राशि का संबंधी गूढ़ चीजों से आता है, या जो दबी छुपी चीजें होती हैं। तो आप लोग वैसे भी कभी ये बात का अंदाजा नहीं लगा पाते कि आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं या उनके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप उनके साथ वाद विवाद करेंगे तो किस या गलत फहमियां अपनी बढ़ने देंगे, तो ये फिर समय में आपको अपने बच्चों के साथ काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा अगर आप पंचम भाव से जुड़े हुए व्यवसाय में हैं, यानी आप शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, या ऐसा कोई भी प्रोफेशन जिसमें कि रचनात्मक सोच आती है, यानी कि कलाकार हो गए, पेंटर्स, स्कल्पचर्स, सब तरह के आर्टिस्ट, इन सब लोगों के लिए भी काफी उथल पुथल भरा समय रहेगा अपने प्रोफेशन में। और अगर आप ऐसे ही हॉबी के तौर पर मार्केट में उतरते हैं, शेयर मार्केट में ऐसे बहुत लोग हैं जो खाली शौक के लिए पैसा लगाते हैं, उनको अक्टूबर के महीने में मार्केट में उतरना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उनका सारा पैसा मार्केट अपने साथ लेके चला जाएगा। इसलिए आप बाहर रहें तो अच्छा है। अगर आप छात्र हैं तो अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा है, खास करके जो आखिरी हफ्ता है अक्टूबर का, वो किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरने की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो 26 और 27 अक्टूबर 2 दिन ऐसे माने जा सकते हैं जब आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उतरने की दृष्टि से। अभी सूर्य और बुध सेकेंड हाफ में यानी 18 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में आएंगे, उसके पहले वे तृतीय भाव में बैठे रहेंगे पहले 17 दिनों तक। तो ये बहुत अच्छा समय है अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी तरह का आपका गलत फहमियां उनको दूर करने के लिए और उनके साथ रैपो या रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने पड़ोसियों को भी उसमें गिन सकते हैं, तो उनके साथ भी संबंध सुधारने पे आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए 13 और 14 अक्टूबर की जो तारीख है वो सबसे अच्छी तारीख बोली जा सकती है जब आप इस तरह का कोई काम कर सकते हैं। अभी आपके लग्न के लिए गुरु और राहु की युति दशम भाव में बन रही है, अप्रैल से लेके अक्टूबर के आखिरी तक ये युति बनी रहेगी। तो ये आखिरी महीना है जब ये गुरु राहु की युति आपके दशम भाव में बनेगी। इसके बाद राहु नवम भाव में चले जाएंगे। तो आपके लिए ये महीना भी है जहां पर आपको आपके कार्यस्थल पे एक अपलिफ्ट मिल सकता है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है दशम भाव में। तो कैसे भी करके व्यक्ति अपना हक छीनने का प्रयत्न करता है अपने कार्यस्थल पे। तो जितने भी लोगों को सितंबर में प्रमोशन नहीं मिला था, अक्टूबर के महीने में उनको अभी भी मौका है कि वो अपने कार्यस्थल पे तरक्की कर सकते हैं, किसी भी तरह का इंक्रीमेंट उन्हें मिल सकता है या प्रमोशन मिल सकता है। और इसके बाद ये युति टूट जाने के बाद खाली गुरु ही यहाँ पर रह जाएंगे, तो उतना स्ट्रांगली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग नया नौकरी ढूंढ रहे हैं या जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए महीने की शुरू में और फिर महीने के आखिरी में 2 बार मौके हैं। 1 और 2 अक्टूबर 2 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे इस दृष्टि से, और 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक का भी समय आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप जॉब में कहीं जंप मारना चाहते हैं तो। अब हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आपको सावधान रहना चाहिए। ये वो दिन है जब चंद्र आपके 6, 8 और 12 से गुजरता है, तो इन दिनों में आपके डिसीजन लेने की क्षमता पे प्रभाव पड़ता है।
और कई बार आप गलत डिसीजन ले बैठते हैं, कई बार लोगों के साथ वाद विवाद में पड़ के अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए इन दिनों में। तो जो दिनों में आपको सावधान रहना है वो 6 और 7 अक्टूबर हैं, 20 और 21 अक्टूबर और 24 और 25 अक्टूबर। इन 6 दिनों में आप अक्टूबर में सावधान रहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। अगर आप धन की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा है। खाली आप उन्हीं चीज़ों के प्रति सावधान रहिए जिनके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया है, नहीं तो अदरवाइज महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये। तो ये समरी है आपकी इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।